Hello, I'm Pradeep Majumdar from GAN Scholar. Today we'll start with a very important chapter on mathematics called percentage. It's very important in all government exams like bank, SSC, UPSC, and in management exams like CAT, MAT, ZAT, SNAP, even for if you want to go abroad, exams like GMAT, GRE. So in this chapter, today I have selected 6 sums which have come in national level exams. Here, we will try to solve these sums in the minimum possible time without using any variable. And that is the main thing. Okay. We will start with the first sum. An alloy of gold and silver weighs 50 gram. It contains 80% gold. Always remember 80% means 4 by 5. 5 में से 4 टुकड़े for Hindi students. How much gold should be added so that percentage of gold is increased to 90%. This came in SNAP, it's a management level exam, All India, 2010. And the options were 30 gram, 40 gram, 50 gram, and 60 gram. Okay, I'll stick and do it so that you can see the sum. ध्यान दीजिए आप लोग, इवन तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से आप लोग भी ध्यान दीजिए. 50 ग्राम का एलॉय था. एलॉय मीन्स a mixture of metals, 2 or more metals, mixture of metals. उसमें से 80 गोल्ड था, सोना था, एंड अदर दूसरे कोई मेटल नॉट मेंशन्ड हियर इन द सम. तो 40 गोल्ड था और 10 अदर कोई मेटल था. तो गोल्ड ऐड किया गया, ये अदर सेम ही रहा. So now this becomes 90% and this becomes 10%. That means 9:1 ratio. So 40 plus G by 10 is equal to 9 by 1. 0 को हटा दिया हम लोगों ने. So 40 plus G is equal to 90. G is equal to 50. 50 gram. So the basic concept of this sum is that the other metal remains constant. आप लोग इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो. देखो 10, ये जो 10 अदर था वो कांस्टेंट रह गया. अभी अगर 100 का मिक्सचर होगा तो उसमें से 9:1 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 90. सो 40 था तो 50 ऐड करना. You all take down these sums. These are very important sums. We will move on to the second sum. Two numbers. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है. 2 numbers are respectively 12.5%
and 25%, 12.5% और 25%, more than a third number. तीन संख्या है, तीसरी एक संख्या है, पहली और दूसरी संख्या है। पहली जो संख्या है 12.5% ज्यादा है और दूसरी जो संख्या है वो 25% ज्यादा है। द फर्स्ट नंबर, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज of the second number is, this is from bank PO exams 2008. You hardly get around 36 seconds or 45 seconds to solve these sums. So the options were 50, 60 means 50%, 60%, 75% and 90%. तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को हम लोग 100 पकड़ लेते, तो फर्स्ट नंबर 12.5% ज्यादा है तो 112.5, और दूसरी जो संख्या है वो 25% ज्यादा है तो 125। तो हम लोगों ने पूछा क्या है, व्हाट दे आस्क्ड अस, फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, दैट मीन्स 112.5 बाई 125 इंटू 100। एक चीज आप याद रखिए, 12.5 इंटू 8 हमेशा 100 होता है और 12.5 इंटू 9 112.5 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रेट कट जाएगा, 9 8, ठीक है, सॉरी 9 10 और 10 100 10 90%। सो 100 12.5 into 10 is 125. So this is 9 times, this is 10 times, and 10 and 100 cut that, this is 90%. Copy down these sums, these are very important. This sum comes in management level exams also. So now we'll move on to the third sum. We have done one number. First sum was on mixture, alloy. Second sum was on numbers. So third sum is regarding prices. The price of an article कोई भी एक चीज है, उसका दाम, the price of an article was first increased आप लोग कॉपी करते जाएंगे कॉपी में by 10% and again by 20%. If the last increased price was ₹33, मतलब 2 बार दाम बढ़ने के बाद अगर 33 रुपीज हुआ, द ओरिजिनल प्राइस वॉज, this came in SSC CGL exams in 2010. The options were 25 रुपए, 26 रुपए 50 पैसे, 27 रुपए 50 पैसे और 30 रुपए। Okay, I'll explain one thing very clearly.
बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 100 10 बढ़ा और 20 बढ़ा 130 हुआ. दिस इज अ ब्लंडर. दिस इज इन द कंपाउंड रेट फॉर्मूला. मतलब 10 बढ़ा, जितना बढ़ा होल अमाउंट पे फिर से बढ़ा. ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं. ओके, विल डू दिस सम इन अ डायग्रामेटिक वे. हम लोग पहले पकड़ते, ओरिजिनल प्राइस था 100 रुपए. 100 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हर एक सम को 100 से कैलकुलेट करने से इजी होता है. लेकिन कुछ कुछ सम में अगर परसेंटेज 33 या 1/3 है तो तब 300 पकड़ लेते हैं, क्योंकि 100 का 1/3 निकाल नहीं सकते. तो इनिशियल हम लोग 100 पकड़ लेते. पहले 10% बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो कितना हुआ 110, 110. ठीक है. यहां पे फिर से 20 बढ़ा, मतलब यहां लिखते हैं हम लोग 20% बढ़ा, मतलब कितना और 22 बढ़ा. तो अल्टीमेटली फाइनली कितना हुआ 132. ना अगर 132 अगर है 33 रुपीज जो हम लोगों को सम पे दिया हुआ, तो हम लोग के ओरिजिनल, इसको लिख लो तुम लोग ओरिजिनल प्राइस, तो 100 कितना होता है. सो दिस इज यूनिटरी मेथड. ₹33 into 100 by 132. 33 132 is 4 times and this is 25. ऑप्शन है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि 100 प्लस 10 प्लस 20. दिस इज टोटली रॉन्ग. ओके, नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट सम. हम लोगों ने 3 सम्स किए. एक प्राइसिंग पे था, एक एलॉय पे था, एक नंबर्स पे था. नाउ द फोर्थ सम आई हैव सिलेक्टेड इज फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अ पर्सन स्पेंड्स, ये काफी बड़ा सम है थोड़ा सा. अ पर्सन स्पेंड्स 75% of his income if his income increases by 20% and expenses increase by 15%, his savings will increase by what percent? This is from RRB, means Railway Recruitment Board, 2008. And the options were 17.5%. ये काफी कैलकुलेशन वाला सम है. 20%, 33 1/2%, और लास्ट ऑप्शन इज 35%. पहला कंसेप्ट, बेसिक जो कंसेप्ट है, इनकम हम लोग जितना कमाते हैं इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस सेविंग. हमारे इनकम में से हम एक पोर्शन खर्चा करते और एक पोर्शन सेव करते. So again also we take 100 as our income. उसमें से हम लोगों का स्पेंडिंग है और एक्सपेंडिचर है. 75% बोला, तो हम लोग 75 रुपए खर्चा करते, 25 रुपए सेव करते. हम लोग का इनकम बढ़ रहा है 20%. ये ओरिजिनल इनकम आफ्टर चेंज 120 रुपए को. ना अभी यहां पे चेंज क्या हुआ, हमारा स्पेंडिंग कितना बढ़ा है, 15% बढ़ा है.
15% मतलब मैं छोटा कैलकुलेशन सिखा देता हूँ आप लोगों को। 10% और 5% मतलब 7.5 और 3.75, दैट इज 11.25 हम लोग का बड़ा। तो ये हुआ 86.25। और यहां हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 120 माइनस 86.25, दैट वर्क्स आउट टू बी 33.75। सो ये जो फिगर आएगा ये आएगा 33.75। तो हम लोग का एक्सपेंडिचर कितना कितना बढ़ा है यहाँ पे, इट इज 8.75, मतलब 33.75 minus 25 is 8.75. So percentage change in expenditure is, so this is saving, not expenditure, saving. This is spending, this is saving. So 8.75 by 25 into 100. 25 100 is 4 times 32, और यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए 32 और 0.75 into 4 is 3, so 35%। ये सम आप लोग सब कॉपी कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, हर एग्जाम में ये सम आता है। यहाँ पे कैलकुलेशंस काफी डेसिमल्स में थे, नॉर्मली फ्लैट आंसर आते हैं, मतलब इतना डिटेल में कैलकुलेशन होता नहीं। नेक्स्ट जो सम है वो एकदम ही कंसेप्चुअल है, एकदम ही कंसेप्चुअल सम है, वो मैथ में से है। अ बॉक्स कंटेन्स 14 एप्पल्स। बॉक्स में 14 एप्पल्स थे, सेब थे, एंड 23 ऑरेंजेस। How many oranges must be removed from the box so that 70% of the fruit in the box will be apples. This came in MAT 2005। मजेदार समय, एक बॉक्स में एप्पल्स थे और ऑरेंजेस थे, 2 काइंड ऑफ फ्रूट्स थे, 14 एप्पल्स थे, 23 ऑरेंजेस थे। तो उसमें से कितने ऑरेंजेस हम लोग निकाल लेंगे, तो एप्पल्स 70% हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये एकदम मेंटली भी कर सकते हैं सबको। एप्पल्स 14 थे, ऑरेंजेस 23 थे, ठीक है। तो ये एप्पल्स कांस्टेंट है, एप्पल्स बढ़ नहीं रहे या कम घट नहीं रहे, दिस इज कांस्टेंट। तो अगर एप्पल्स कांस्टेंट कितना उन्होंने बोला है कि ये 70% होगा। अगर 70% अगर है 14, तो 100% कितना होगा, 14 इंटू 100% बाई 70%, परसेंटेज कटेगा 14 5 और 5 120, ठीक है। मतलब बॉक्स में 20 फ्रूट्स होंगे अल्टीमेटली, उसमें से 14 एप्पल्स होंगे और बाकी ऑरेंजेस होंगे। मतलब कितने ऑरेंजेस होंगे, 6 ऑरेंजेस होंगे। तो ऑरेंजेस पहले कितने थी, 23 थी। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमूव्ड इज 23 माइनस 6, दैट इज 17। मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए थे, यहाँ पे ऑप्शंस थे 6, 12,
17 और 36. This is also very important concept. एक मजेदार सम था. Now we'll do the last sum. हम लोग कभी कभी गलतियां करते सम करते वक्त. कभी कभी हम लोग को बोलते कि आप इस नंबर को इससे डिवाइड करें, हम उसको मल्टीप्लाई करते थे, या पहले बोलते आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करना चाहिए था. तो दीज आर मिस्टेक्स वी डू. मिस्टेक्स में कभी कभी कुछ समझ आते हैं इन नेशनल लेवल एग्जाम्स. A number is mistakenly, मतलब गलती से mistakenly divided by 2. जब गलती जो हुई, डिवीजन गलती से हुआ था, डिवाइडेड बाय 2 instead of being multiplied by 2. करना चाहिए था डिवीजन, हो गया, मतलब करना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हो गया डिवीजन. सो मल्टीप्लाइड बाय 2. what is the percentage change in result? तो ऑप्शंस में है. ये कोई एग्जाम का सम नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सम है. टॉप लेवल बुक से मैंने इसको सिलेक्ट किया है. 100%, 125%, 200% एंड 75%. यहां पे सबसे जो मिनिमम नंबर क्या है? 2, क्योंकि हर जगह पे 2 2 दिया हुआ है. डिवीजन 2 से, मल्टीप्लिकेशन 2 से. सो लेट नंबर बी 2. ये 2 को पकड़ना सबसे इजी है, क्योंकि जितना बड़ा आप नंबर लेंगे उतना कैलकुलेशन भी बड़ा हो जाएगा. सो गलती क्या होगी? मिस्टेक एंड एक्चुअल. होना चाहिए था ये, गलती से हो गया ये. सो गलती से क्या हुआ? हम लोगों ने 2 को 2 से डिवाइड कर दिया. तो आंसर क्या है? 1. करना क्या चाहिए था? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था. तब एक्चुअल आंसर क्या आता था? 4. डिफरेंस कितना हुआ? 3. होना क्या चाहिए था? 4. 3/4 into 100, 75%. So today we will conclude. From next classes onward, I will go on for even higher level sums. Thank you.